दोस्तों, ममता बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि पूरी टीएमसी एक सुर में कहने लगी, यह आपने अच्छा नहीं किया। पार्टी का कहना है कि इस फैसले की वजह से बंगाल में तनाव बढ़ सकता है, जनता सड़क पर उतर सकती है और जवाब मांग सकती है। दोस्तों, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने एक 4 मिनट का वीडियो जारी किया, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। पूरे विस्तार से आपको पूरी कहानी समझाऊंगा कि आखिर ममता बनर्जी के साथ क्या हुआ और इसे लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, ऐसे दौर में जब ममता बनर्जी राजनीतिक तौर पर खुद को घिरा हुआ महसूस कर रही है, टीएमसी के कुछ नेता उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं। इनमें महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी और ओब्रायन जैसे नाम शामिल हैं। अब डेरेक ओब्रायन ने एक वीडियो साझा किया और दावा किया कि उसमें ममता बनर्जी के आवास के बाहर की स्थिति दिखाई गई है। पहले आप ये वीडियो देखिए। Okay, we are outside the residence of Mamata Banerjee. I happen to be here. My car was parked here. And now what has happened, at about 7:30 this evening, it's now 10 p.m. At about 7:30 this evening, her PSOs, who've been with her for 20 years, were taken back by the West Bengal police. And now I'm outside her residence just here, you can see, and there's no police. So I parked my car here, I put out that video, parked my car here just to make her feel a little more secure. Now I'm going to go in, আমি ভেতরে যাচ্ছি, এখানে গাড়ি সামনে পার্ক করে রেখেছি। এখান থেকে কেউ ঢুকতে পারে না, কোনো কেউ ঢুকতে পারে না। আর এখন ঢুকছি, এখানে ঢুকছি মমতাদির বাড়িতে, এখানে কোনো পুলিশ নেই, all empty, completely empty. This is here. Can you believe it? Beta hocche. That is the entrance. Come here, please. Come here, I'll show you. Right down. At the back, pechone. At the back, pechone. Leading on to the canal at the back. Here we are. This is where Mamata Di was sitting just now. She was sitting here. Literally sitting here. We just entered inside. What kind of pressure is this? What kind of, I mean, is there a light here? Oh my God. Okay. This is the vendetta. Unknown PSOs who she's not familiar with. After 20-25 years, you want to change your PSOs. 3-4 people come here. This is the home. How risky is this? This is unprecedented. I happen to be here because my car was parked outside. There we are. I happen to be here. I came to pick up my car. Otherwise, I'm usually not here at 9 o'clock in the night. Because I came to pick up my car. Then I got a call from my colleague Kalyan Banerjee, who told me that the PSOs have been removed. Kalyan stays just a few minutes passing. So that's why I've come here. These people have also left. They were asked to leave because it's an unknown situation. She didn't want to be surrounded by unknown people. See that? So that is the story. এখানে কি ঘটেছে? মমতা দি এখানে আছে বাড়িতে। আমরা মমতা দির 2-3 জন এখানে রাতে থেকে যাবে। আননোন 3 জন পিএসও কে এখানে পাঠানো হয়েছে। কে কোথায় আর্মস? What is going on? What is going on? It is very disturbing. It is very, very disturbing. Why are they doing this? Why? Because she walked with hawkers this evening. Why? Because she filed a case for the Bhawanipur elections. Bhawanipur election case diyece ar eta. How can you send 3 unfamiliar people? Let's take you back there. Show you exactly যে কিভাবে এখানে হচ্ছে। Just এটা দেখো। কালকে থেকে এই অবস্থা। টোটালি যাদের চেনা নেই, ওদের ডাকা হয়েছে, ওদের পিএসও 20-25 যখন মমতা দি এমপি ছিল সেই সময় থেকে পিএসও কে আজকে সরিয়ে দিয়েছে, ওদের ডাকা হয়েছে। কালকে ওরা আসবে কি আসবে না। এখানে এখন রাত 10টা বাজে। এটা মমতা দির বাড়ি, পেছনে তৃণমূলের হেডকোয়ার্টার। আর কি বলবো, এই দেখুন এখানে আমরা শুরু করে যাই। এখানে একদম গেটের সামনে আমি গাড়িটা পার্ক করে রেখে দিয়েছি। সৌভাগ্য যে প্রধান আমাকে ফোন করেছিল আর আমার গাড়িটা ওখানে পার্ক ছিল।
এই রাত্রে গাড়িটি তুলতে এসছি এত পলিটিক্যাল ভেন্ডেটা। देखा दोस्तों, वीडियो में घुप अंधेरा नजर आ रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक राष्ट्रीय स्तर की नेता को जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए वैसी व्यवस्था यहां दिखाई दे रही है। वीडियो में पुलिस कर्मियों की मौजूदगी भी नजर नहीं आती। इसी को लेकर टीएमसी सवाल उठा रही है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ प्रशासनिक फैसला है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश छिपा है? टीएमसी का आरोप है कि ये कदम सही नहीं है और इससे गलत संदेश जा सकता है। याद कीजिए, पिछले कुछ वर्षों में टीएमसी नेताओं के साथ कई विवादित घटनाएं सामने आई हैं। अभिषेक बैनर्जी पर पत्थरबाजी, अंडेबाजी हुई, उनकी आंख में चोट लगी, कल्याण बैनर्जी पर हमला हुआ और टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर भी उत्पात का कहर जारी है। ऐसे में जब ममता बनर्जी के आवास के बाहर की ये तस्वीर सामने आती है तो टीएमसी इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक हस्ती है ममता बनर्जी, कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। कई बार की मुख्यमंत्री भी रही हैं और उनकी सुरक्षा इस तरह की दोस्तों ये अपने आप में हैरान करता है। दोस्तों, राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने आरोप लगाया कि शुभेंदु सरकार ने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास के बाहर से सुरक्षा हटा ली है। पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें सांसद ने यह दावा किया। टीएमसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, सियासी बदले की भावना का एक चौंकाने वाला और निचला स्तर। आखिर आप क्या साजिश रच रहे हैं शुभेंदु अधिकारी? ममता बनर्जी की सुरक्षा में लंबे वक्त से तैनात सुरक्षा कर्मियों को हटाना कोई प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि ये उन्हें अलग थलग करने और खतरे में डालने की एक सोची समझी चाल है। बदले की राजनीति का आपका जुनून और असुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर सत्ता का गलत इस्तेमाल ये साफ दिखाता है कि आप असल में कौन हैं। अगर छोटी राजनीति का कोई चेहरा होता तो वो निसंदेह आपके जैसा ही दिखता। टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने एक वीडियो के साथ सोशल मीडिया पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा, शुभेंदु और भाजपा क्या चाहती है? आप बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे हैं। ममता दीदी की पुलिस सुरक्षा हटाकर आपकी मंशा क्या है? कहीं आप किसी अप्रत्याशित घटना को अंजाम तो नहीं देना चाहते? अगर उनको कुछ हुआ तो बंगाल जल जाएगा। Okay, what is happening here is quite unprecedented. It's 9:33 p.m. and this is the residence of Mamata Banerjee here. Okay, our PSOs of 2 decades have been asked to report to the office at 7 o'clock. Now the rest of the police are here. There is no policeman here. This is the gate. I'm inside with her. Now there's a gate. 2 or 3 have been kept behind. Now at the back. Yeah. This is highly risky. So what I'm trying to do is this gate is shut. Her 3 PSOs. Mamata Di is inside. Means inside that. So what I'm trying to go and do is now park my car at the main gate. आप लोग अंदर मत जाइए भाई साहब, आप अंदर मत जाइए, ভেতরে যাবেন না। আমি গাড়ি রেখে गेटेर सामने गाड़ी रखी, তারপরে उसके बाद कोई नहीं जा सकता अंदर, उसके बाद अंदर कोई नहीं जाएगा। नो, ये किसका है? This is it. So I have now parked my car. Get up on the road. I have parked my car, blocking the entrance. This is no other place. This is the residence. ये ममता दी का घर का मेन गेट है। एक अलग पोस्ट में कीर्ति आजाद ने कहा, तुम डरे हुए हो, तुमने परमिशन नहीं दी, तुमने चीटिंग की और इलेक्शन जीत लिया। तुम्हें पता है वो ममता है, धमाके के साथ वापस आएगी। क्या यही वजह है कि तुमने उसकी सिक्योरिटी हटा दी? तुम कायर हो, ये बदलाव नहीं, ये बदला है। वहीं टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये बहुत चिंताजनक है। दीदी की सुरक्षा में लंबे वक्त से तैनात सुरक्षा कर्मियों को अचानक क्यों हटा लिया गया?
और उन्हें देर रात बिना किसी सुरक्षा के क्यों छोड़ दिया गया। किसी पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा का मामला राजनीति का नहीं बल्कि बंगाल सरकार की संस्थागत जिम्मेदारी है। बंगाल में बदले की भावना वाली अविश्वसनीय राजनीति हो रही है। तो दोस्तों, ये तस्वीर बहुत कुछ कहने और बताने के लिए काफी है। ये तस्वीर बताती है कि ममता बनर्जी के जिन 20 सांसदों और 60 से 65 विधायकों ने उनका साथ छोड़ा है, उसके पीछे आखिर किस तरीके का डर काम कर रहा था। वो ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, अभिषेक बनर्जी की कथित तानाशाही को वजह बताते हैं, लेकिन क्या वास्तव में यही कारण था? मुझे तो लगता है कि असली वजह डर है। फिर चाहे वो डर सुरक्षा व्यवस्था हटाकर पैदा किया गया हो या फिर ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों का दबाव हो या फिर ममता बनर्जी के साथ ऐसा व्यवहार करके बाकी नेताओं को संदेश देने की कोशिश हो कि जो आज भी उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं वो भी साथ छोड़ दें। लेकिन जैसा कि कीर्ति आजाद ने कहा कि ममता बनर्जी की सुरक्षा से खिलवाड़ करके आप बंगाल को मुश्किलों में डाल रहे हैं। बीजेपी यही कर रही है। बंगाल में नई बनी ये सरकार वही कर रही है, क्योंकि ममता बनर्जी कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, वो राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं। वो बंगाल के उन नेताओं की जमात में आती हैं जिनका नाम देश के अलग अलग राज्यों के लोगों की जुबान पर रहता है। ममता बनर्जी का कद स्वर्गीय ज्योति बासु, बुद्धदेव भट्टाचार्य, सोमनाथ चटर्जी और इंद्रजीत गुप्त जैसे बड़े नेताओं की श्रेणी में रखा जाता है। ममता बनर्जी वो नेता हैं जिन्हें भाजपा के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी भी गंभीरता और सम्मान के साथ सुनते थे। उनके सुझावों पर विचार किया जाता था। भाजपा में आज भी कई पुराने नेता ऐसे मिल जाएंगे जो ममता बनर्जी को एक ऐसी नेता मानते हैं जो किसी से नहीं डरती। और शायद यही बात भाजपा की नई पीढ़ी के कुछ नेता नहीं जानते। ऐसे नेता जिनकी राष्ट्रीय पहचान 2014 के बाद बनी। आज अगर सवाल पूछा जाए कि 2014 से पहले अमित शाह को देश भर में कितने लोग जानते थे, नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय राजनीति में किस रूप में जाना जाता था, तो जवाब में कुछ और ही मिलेगा। गूगल में सर्च करिएगा, पता चल जाएगा। और शुभेंदु अधिकारी को कितने लोग पहचानते थे? शुभेंदु अधिकारी को तो लंबे समय तक लोग टीएमसी के नेता और ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी के रूप में ही जानते थे। ममता बनर्जी ने कई नेताओं को राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाया, राजनीति की बारीकियां सिखाई। आज वही नेता उन्हें राजनीति का पाठ पढ़ाने निकले हैं और उन्हें डराने की भी कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी की सुरक्षा को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, समर्थक उसे उसी कहानी का हिस्सा बता रहे हैं। लेकिन मुझे इस कहानी में आगे जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि ममता बनर्जी शायद पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरेंगी। और अगर ऐसा हुआ तो ये भाजपा के लिए राजनीतिक चुनौती बन सकता है। दोस्तों, आम बोलचाल में एक बात कही जाती है, किसी को इतना मत डराओ कि उसका डर ही निकल जाए। ममता बनर्जी पहले भी नहीं डरती थी। अब ऐसी घटनाएं टीएमसी के मूल कैडर को और ज्यादा आक्रामक तथा सक्रिय बना सकती है। बहरहाल दोस्तों, हमारी इस खबर और विश्लेषण में फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।